So continuing where we left in our previous discussion, we were speaking about how agri-tech and all these areas which are so important. So we were talking about drones. So drone for women self-help groups. So मानसी, दो बातें ऐसी बताइए जो ड्रोन्स वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पूरा एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर देंगे, ऐसा क्या है? So one would be again easy supply in terms of getting the access to raw materials or even having the produce sent to the markets. That can be one of the areas, or they can have a greater participation even with the startups. So ओके। that can. तो ड्रोन का अगर मैं आपसे पूछूं तो किया क्या, अगर आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो तो आप क्या करोगे उस ड्रोन से? So in terms of skill training, like they can be better trained for like repair and damage related services regarding the drones, if that is possible. ओके। So majorly, so they can help in delivery or when it comes to agriculture. So in agriculture, as we are talking about the drone Didi scheme, so in terms of empowering the women, for example, in utilization for कौशिक, आप the बताइए। आप बताइए fertilizer. कि वो ड्रोन का किया क्या है, जो So ड्रोन दीदी everything can be स्कीम। used with the use हाँ, of drone. बताइए। Everything. For example, logistic drones have हम्म, urea. We can urea can be sprayed. Then with the use of drone, we can be sent to the contract on the basis of e-commerce supply. फिर fast moving e-commerce through the use of पेस्टिसाइड एप्लीकेशन pesticides, आल्सो कैन ऐसे बी door करेक्ट। mapping of soil, mapping of land, some PM Samvita scheme, ओके, then ओके, financial ओके, services. आई गॉट इट। ठीक है, तो अगर हम बात करें मानसी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक क्विंटेंशियल एग्जांपल है। क्विंटेंशियल एग्जांपल इसलिए है क्योंकि वो जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टरों को डिमांड और सप्लाई डायनामिक्स की तरह जोड़ रहा है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। वेस्टेज भी Mhm. कम होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वैल्यू बढ़ेगा, डाइवर्सिफाई भी होगा, कमर्शलाइज भी होगा, सब कुछ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंज्यूमर जो बिहेवियर है वो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चेंज कर सकती है। कंज्यूमर डाइवर्सिटी भी देख सकता है, वो डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन में भी रोल प्ले कर सकता है। तो ये उसका ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। औशिक, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सेक्टर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जो कि मोर देन 10% की ग्रोथ से ग्रो हुआ है। तो ये सेक्टर जो है कंज्यूमर डायनेमिज्म भी है इसमें। तो ये इसको इसको हम सनराइज और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? हाउ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कैन बी सीन एज ए सनराइज एंड ऑल्सो फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। So for inclusive growth, it can act as a buffer to the price distortion in the market. For example, with regard to top scheme, even onion, potato, tomato. Second would be, sir, हम्म, food with the food processing sector, we can improve the skill of the various हम्म, farmers and allied groups so that they can get a better remuneration. For example, papad, biscuit, even हम्म, jam, हम्म। etc. ये And the हुआ, same ये हुआ, dietary ये preference, nutritional करेक्ट। aspect of the society हम्म, can be fulfilled. For हम्म, example, egg हम्म, and light हम्म, prawn and protein हम्म। deficiency can be uh, minimized with the use of food मानसी, processing. जब हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है लॉस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज। Right, sir. लॉस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज, तो फ्रूट्स हैं, अराउंड 15% तक लॉस होता है हमें टोटल प्रोडक्शन का। वेजिटेबल्स अराउंड वो भी 4% से 10% के बीच में। टमाटर सड़कों पे किसानों को फेंकने पड़ते हैं, और वरना 200 रुपए किलो टमाटर है। फिशरीज भी 4% से लेकर 10% के बीच में होता है। मिल्क का है, मिल्क का लेकिन सबसे कम है। Mm. तो ऐसा क्या करें मानसी, बताइए, जिससे ये पेरिशेबल कमोडिटीज का लॉस हमारा कम। So one direct would be the food processing sector itself. Like they can be used in making jams or making pickles, or even like as a preservatives, they can be better processed and as Oshik stated that better helpful in terms of nutritional security or reducing the wastage directly, or in हम्म। terms of dealing with the price volatility also that can help us. ओके करुणा, Sure. कैन यू प्लीज शेयर दैट हाउ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज are more women centric, and which part of India they are more concentrated, and how?
Yes, so they are concentrated majorly in the southern India part, करेक्ट, approximately 35%. And यस, because it is directly linked to the agriculture sector, that is why the role of women is also much more in that आई sector. एग्री, आई एग्री, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आंध्र प्रदेश का वॉलनट, अरुणाचल प्रदेश, यू नो, नहीं, स्पाइसेस हैं आंध्र प्रदेश की, जैसे टर्मरिक है, उसके बाद जिंजर भी आ सकता है. एंड देन बेकरी प्रोडक्ट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. औशिक, तो जो फोकस्ड अटेंशन कैसे दें, जो 4A हैं इसके: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेयरनेस. Yes. अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेयरनेस, ये कैसे होगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में? So this can happen if the grassroots level local bodies, even the panchayati system is empowered through the use of finances as well as with the participation of people in the food processing sector rather than much more focusing on MSP rate or even in farming sector. So creation of the value chain product at a very district, one product. For example, apple is famous in Himachal Pradesh, turmeric, Kali honey turmeric famous in Odisha. Such kind of one district, one product can be promoted, high value product. This वन डिस्ट्रिक्ट, ओके, one वन district, one डिस्ट्रिक्ट, वन. मानसी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना या फिर प्राइम मिनिस्टर का जो एफर्ट है उनका, माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को फॉर्मलाइज कैसे किया जाए, माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को फॉर्मलाइज कैसे किया जाए, इस दिशा में आप क्या कहते हैं? So one would be official registration or gathering the data regarding them. That can be the first step. Then, so in terms of giving licenses to these microprocessing industries, that can be another area. तो आप कह रहे हैं कि पीएम अगर चाहते हैं कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फॉर्मलाइज हों, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, औशिक ने जैसे एग्जांपल्स आपने दिया, आपने बोला कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस और कोऑपरेटिव्स का हेल्प होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सीड कैपिटल मिलना चाहिए, फिर बाकी So कॉमन financial ट्रेनिंग, inclusion. ट्रेनिंग एंड रिसर्च होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग भी होनी चाहिए. तो दिव्या, आप मुझे बताइए कि जो ये स्टार्टअप्स हैं, जैसे जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, अगर आपका एक स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप है आपका, फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप है, तो आप उसको ग्लोबल मार्केट कैसे प्रमोट करोगे और कौन सी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन का आप सपोर्ट लोगे? सर, जैम पोर्टल के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है रिटेल और सेल के लिए की. ओके, उसके मानसी आप अलावा बताइए. ई कॉमर्स. So getting the products listed on different e-commerce sites can be one of the ways. बट विच एजेंसी इन Sir, इंडिया यू आर गोइंग टू टेक? सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा एजेंसी है जिसके बिना आप काम ही नहीं कर पाएंगे? So APEDA. अपेडा. दिव्या, फुल फॉर्म बताइए अपेडा का. करुणा, कौशिक. so agriculture, produce, export, हाँ, development, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स. yes, agriculture and processed food एग्रीकल्चर product एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, authority. अपेडा. Yes, upward. बिल्कुल सही कहा. अपेडा ने हमारे फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है. जैसे ब्राजील हो गया, बाकी कंट्रीज हो गए, उनके साथ हमने काफी सारा मदद किया. मानसी, जो रूरल वाटर सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टार्टअप का एक कैंपेन, स्टार्टअप का कैंपेन तो नहीं कहूंगा, यूएन का एक कैंपेन था जिसमें यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था, जिसको शॉर्ट में कहते हैं वॉश. क्या है वो? So it is firstly when it comes to the behavioral aspect of using the What is water. wash? First of all, what is wash? So What is exactly, so wash? I don't remember the अच्छा, आप बताइए औषित जी. water. What is I think So water, for sanitation, hygiene. very is the good? first. the Yes. water availability, बांग्ला. sanitation. Yes. Yes. Water, hygiene, sanitation. Water, sanitation, hygiene. I'm sorry. Wash. Water, sanitation, hygiene. तो इसमें मानसी कौन सा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सबसे ज्यादा मदद करता है? So World Bank. वर्ल्ड बैंक. एक ऐसे मिशन का नाम बताइए जो कि इंडिया के पूरे पैन इंडिया लेवल के ऊपर जो लागू हुआ. The Swachh Bharat Mission. स्वच्छ भारत मिशन.
औशिक, आप मुझे बताइए कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसके अंदर वॉश की बात की गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो जुड़े ही जुड़े, साथ में हमने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात की, और डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट जो है फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एलिमेंट्स क्या है रूरल वाटर सिक्योरिटी के? औशिक, आप एलिमेंट्स बताइए, एलिमेंट्स क्या आएंगे उसके अंदर? व्हाट आर द एलिमेंट्स? So elements of water security in rural area would be accessibility of water and accessibility as well as pure water, that is near jal. ये और That's बोलिए, the और second बोलिए, would be sir और regarding conservation of water harvesting. Third, और बोलिए, और yes. बोलिए, Third would be finance. How it can be और developed. बोलिए, और Finance would be बोलिए, the fourth, the कुछ people's स्ट्रिक्ट बहुत है। participation. Strict one. मानसी, आप बताइए, और बोलिए आप। So using traditional methodologies like चलो, वो construction भी of हो गया, ऐसे ही और बोलिए। तो आप marshland. सिंपल इसको बोल सकते हैं, स्टार्टअप को सबसे पहले वाटर डिमांड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वाटर डिमांड मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर क्वालिटी, फिर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर गवर्नेंस। हो गया बस। ये सारे वर्ड जो आपने बोले उसके अंदर आ जाते हैं। तो औशिक, चैलेंजेस क्या आएंगे? चैलेंजेस क्या है रूरल वाटर या वॉश सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें चैलेंजेस क्या है? आपको चैलेंज क्या आएगा एज ए डीएम? आप कौन से चैलेंज को आप दूर करेंगे? The challenges of water security in a rural area would be uh, first would be say land acquisition for promoting a water conservation technology. Land acquisition is required for creating a ponds or even infrastructure, hard infrastructure. Second would be convincing the people regarding the water sensitive approach, water productivity. For example, recently in Bihar, where water meter, even electric meter was installed, there was a riot, small riot. So persuasion can be used. So third would be finance, how to use the durable asset, and how the manpower can be used under Manrega or other schemes for creating of a durable asset in the Ministry of Jal Shakti. This can be. सो मानसी, जब मैं बात करता हूं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स मान लो हो गए, तो आप किसी स्टार्टअप, जैसे एक का नाम था पहले स्वजल नाम था उनका, बाद में उसका नाम बून रख दिया गया, तो आपने देखा होगा वाटर एटीएम्स की बात भी होती है ना? जी सर। आईओटी बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज आ जाती है कि पानी खत्म हुआ, रुक गया, उसके बाद जो है अपने आप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है। और तो वाटर एटीएम्स में आप क्या करोगे? So water ATMs firstly increasing their density and their availability. That can be one of the areas. और कुछ? So और मैं आप बताएंगे water कुछ इसमें? आप जैसे औशिक, आप बताएंगे, आप इसमें बताएंगे औशिक की रोबोटिक्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है ऐसे में? कोई एग्जांपल? In the water security, sir. यस। Yes. So role of artificial intelligence is to map the water productivity in each region as well as water ये तो हो demand. गया। Yes. And एक और also सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो वाटर और सीवेज है, सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वाटर और सीवेज मैनेजमेंट yes, sir. के लिए मानसी, आप क्या बोलोगे, क्या बहुत जरूरी है? the waste treatment plants or water treatment plants. सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव Sir. से, हाँ बोलिए औशिक। So socio-economic perspective is the role of caste discrimination in the sewage वेरी यस, treatment mechanism. यस। For that, technology can be used, आप like लोगों को mantle. मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलना चाहिए था Scavenging. कि Manual मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्ल्ड के फर्स्ट एवर रोबोटिक स्कैवेंजर, जो कि केरला में सबसे पहले यूज किया गया। केरला का bandicoot. स्टार्टअप ने बनाया, और उन्होंने बैंडिकूट नाम दिया उसका, क्योंकि रैट से रोडेंट से नाम आया। वो आपको एग्जांपल्स लेके आने चाहिए। जेन रोबोटिक्स आप एक एग्जांपल है, जेन रोबोटिक्स भी एक वो है। चलिए, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट उस पर बात करते हैं मानसी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के सेक्रेटरी हो, तो स्टार्टअप्स एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ वहां के लिए क्यों जरूरी है? 4 पॉइंट बताइए। So जरूरी है because of inclusive growth, एक ecosystem create करने के लिए वेरी of ट्रू, the वेरी गुड। और बोलिए, to create more employment opportunities in that region and stop बोलिए। that so idea regarding कि we have to migrate to the central Indian region. वेरी ट्रू। तो औशिक,
आप मुझे बताइए कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसका एक जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं Yes, वो sir. क्यों चाहिए? So Northeast center sector scheme is required because each state in Northeast is not having such kind of huge resources as compared to hinterland state. That is why central support is there through the use of DONER, Department of Northeast Development Region. And so for that, how it can be developed with the use of durable asset as well as connecting the Northeast with the Act East policy of India is setting up. दिव्या, दिव्या आप मुझे बताइए कि अगर आप सेक्रेटरी हो और आपको स्टार्टअप्स के एरिया आइडेंटिफाई करने हैं, सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप चार कौन से सेक्टर आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद करुणा चार सेक्टर और बताएगी। बी क्विक। करुणा आप बोलिए। मानसी आप So they बोलिए। will चार, be regarding agriculture, regarding एक, organic farming, दो, and also regarding tourism sector, तीन, in the education sector for integrating different technologies with the चलो local चार, languages, ठीक है, और बोलो। and sir in the healthcare sector. वेरी गुड। और तो हेल्थ केयर नहीं होता, हेल्थ एंड वेलनेस होता है। Yes, sir. और ऐड कीजिए। कौशिक आप बताइए जो छोड़ दिया है। So one can be handicrafts, promoting वेरी गुड। products हैंडलूम एंड produced. टेक्सटाइल्स, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स करेक्ट, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल आएगा। और बोलिए कौशिक, और बोलिए। In the IPR, intellectual property rights, यार for सीधा example. आईपीआर पे पहुंचे यार, पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो कर लो, सीधा ही आईपीआर। So और IPR बोलिए। led जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, so फॉर एग्जाम्पल और और सेमीकंडक्टर हो गया, और बोलिए, और बोलिए। Sir, Ayurveda can be one of the वो तो आ गया ना, Ayush. हेल्थ एंड वेलनेस में आ गया। Hmm. वेस्ट मैनेजमेंट एनर्जी नहीं बोल सर, रहा है कोई, एनर्जी हो गया सर वेस्ट उसमें, और मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बोल रहा है, यस। और ना रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स बोला किसी ने। तो ये वो है, अगर आपको ये पता है ये सारे एरिया, तो आपका विजन और आपका आइडिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड है भाई, 100 करोड़ का कॉर्पस है पूरा, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंटल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है पूरा, वो पूरा यही काम करेगा, आपको सभी जगह हेल्प करेगा, सारी चीजें बताएगा। यानी इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन भी करना है, एस्पिरेशन भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। तो हमने जैसे पहले चर्चा की, एक्सेस टू फंड चाहिए, एक्सेस टू मार्केट चाहिए, मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। एक औशिक और चीज बताइए जो कि ना सिर्फ स्टार्टअप्स में बल्कि किसी भी चीज को पाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन इट कम्स टू स्किल ट्रेनिंग। क्या चीज चाहिए जो कि स्टार्टअप के लिए बहुत जानी जाती है, और जब हम बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं तो उनका नाम भी आता है कि हाँ स्टार्टअप में इन्होंने ये किया, तो उसको क्या बोलते हैं? सब वेंचर कैपिटलिस्ट और फंडिंग जो होता है, वेंचर स्टार्टअप कैपिटल, फंडिंग, स्ट्रीट बिल्कुल कैपिटल फंडिंग हो गया होता है, सर। लेकिन फंडिंग वाला जो काम कर सकता है, फंडिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ हर कोई नहीं कर सकता। मानसी आप बोलिए। So lateral entrants can play lateral entry. लेटरल एंट्री स्टार्टअप में कौन सी एंट्री करवाएगी भाई? किसी भी स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप बताओ दिव्या, करुणा। Sir, experts in that particular field. वो तो होगा ही, वो तो कर ही लेंगे। सर मेंटोरशिप, प्रोडक्ट, Hmm. मेंटोरशिप, बिना मेंटोरशिप के कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वेरी वेरी क्रूशियल, वो आपको रास्ता दिखाता है वेंचर कैपिटलिंग के साथ साथ। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में मैं बात करूं, औशिक आपसे मैं बोलूं, हाउ ड्रोन रेवोल्यूशन, कैसे ड्रोन रेवोल्यूशन या ड्रोन टेक्नोलॉजी नॉर्थ ईस्ट को चेंज करेगी, कैसे? so with the help of drone, uh, the terrain mapping will can be done in a very और sustainable manner regarding soil mapping, even uh, zones of palm oil or even other renewable source of energy it can be mapped. Second would be the land rights. That is a important features of the ethnic issues between the northeast region. The land rights can be determined. Third would be with the help it can play a very important role in security, mitigating the security challenges in northeast. As a fourth would be it will reach that rough terrain
for giving of the services, for example, healthcare services as well as education Okay. services. मानसी, क्या PLI स्कीम है ड्रोन्स के लिए और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए? Yes, sir. It is क्या there. है, बताइए। So, production linked incentive scheme is particularly to give financial incentives for the incremental output that would be produced, so as to boost the manufacturing of that dedicated product. ओके, तो So आप ये it is बताइए। in terms of components development or then Very true. assembling of the entire drone. तो किस तरह के ड्रोन हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये बताइए। So it can be in terms of the capacity or the weight that they can handle. So I can't recall the term for ओके them. ओके, औशिक आप बताइए किस तरह के ड्रोन इंपोर्ट करना चाहेंगे हम? So commercial drones are micro pilot or small drones. आप बताइए, करूँ ना? मतलब महानता जो है वो अंदर से निकलती है। इंडिया हैज बैंड एनी काइंड ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स, वी डोंट इंपोर्ट देम, तभी PLI स्कीम और ये सारी बात हो रही है ना। और आप बैठ के इंपोर्ट भी करने को तैयार बैठे। देयर इज अ बैन। डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स को बैन कर रखा है। लोकल ड्रोन इंडस्ट्री आगे बढ़े। ड्रोन शक्ति स्कीम भी है और आप यहाँ इंपोर्ट भी करने को तैयार है। किसान ड्रोन भी आ चुके हैं। किसान ड्रोन है, वो एक कमिटमेंट है गुड गवर्नेंस का, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन के लिए है। यानी कि अगर मुझे छोटी सी जगह पे भी अगर मुझे स्प्रे करना है तो मैं उसके लिए प्रिसीजन स्प्रेइंग आप कह सकते हो, सीखने के बाद आप कर सकते हो प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो औशिक, प्लांटिंग और क्रॉप सोइंग और क्रॉप हेल्थ असेसमेंट के लिए अगर आप केस स्टडी लोगे तो कौन सा एरिया पकड़ोगे और आप कौन सी केस स्टडी को आप एग्जांपल दोगे? So example of Sikkim models with regard to organic farming. ओके, वो तो बहुत पिट गया है, कोई और नया बताइए कुछ। So नया example of horticulture in Arunachal Pradesh. Second word पे तो व्हाट अबाउट मानसी, आप बताइए कि ड्रोन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ड्रोन का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है जब मैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करता हूँ? उसके बाद करुणा और दिव्या भी बोल सकते हैं। So it would be requiring less manpower, और वो हमें एक wider view दे सकता है of again field surveillance when going for field mapping also, or assessing the cultivated crops. नहीं, और And अगर मैं और फोकस the बात करूं, spraying और अगर of मैं fertilizers. नहीं, अगर मैं एकदम फोकस बात करता हूँ प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, तो आपको ये बात नहीं समझ में आती या दिखता है कि अगर हम सोचें जो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही स्प्रे करेगा वो। तो सोचिए कितना लो कॉस्ट और कितना इजी मेंटेनेंस हो जाएगा। स्टर्डी डिजाइन है, डिटैचेबल कंटेनर है, लो कॉस्ट उसके फ्रेम बने हुए हैं, प्रिसाइज एकदम, जो पेस्टिसाइड किया वो किया, उसका बात खत्म। आपको लगता है नहीं रिवोल्यूशन आ जाएगा इससे? जी सर। लेकिन औशिक आप बताइए इसके कॉन्स क्या है, क्या कॉन्स है, लिमिटेशन क्या है एग्री ड्रोन्स के? So agri drone have certain kind of limitation. First is skilling. Skilling is adequate or not. Second would be स्किलिंग 10 focus. दिन में आप भी उड़ा लोगे, उड़ा लोगे 10 दिन में। कोई स्किलिंग का आप इंडियन किसान के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं जो बिना किसी बात की लकड़ी से भी जो है खुदाई कर लेता है? स्किलिंग इज नॉट ए इशू। और बोलिए मानसी, आप बताइए क्या लिमिटेशन है ड्रोन को उड़ा के? क्या है, क्या वो तो उड़ा देगा ही। Like in hilly terrains or terrains, the सीधा height. पहाड़ पे जाके खड़ी होगी, सीधा पहाड़ के कोने पे जाके थोड़ी ना कूदने की बात हो रही है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। In terms of महाराष्ट्र like, में, तेलंगाना में, रूरल एरिया के अंदर हूं मैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में हूं मैं, वहां पे ड्रोन है, मेरे पास ड्रोन है, तो लिमिटेशन बताइए। So scaling is not only with regard to flying of drones, but also repair and also maintenance of drone. It is required, sir. अच्छा चलिए, Apart हाँ from ये मैंने मान लिया उसका, ये मैंने मान लिया कि इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज है। हर किसान के पास इतना पैसा नहीं होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास भी नहीं होगा कि वो रिकरिंग एक्सपेंसेस कर सके। एक हो गया ये। और बताइए, और ड्रोन को उड़ाने के लिए क्या चाहिए औशिक जी? internet चाहिए, sir. Internet accessibility. इंटरनेट। बहुत बहुत अच्छा है। बुद्धि चलती है लेकिन देर में, 2G पे चलती है, तो इंटरनेट हर जगह चाहिए, कनेक्टिविटी हर जगह चाहिए। जितनी देर में उत्तर आएगा, सक्सेस उतनी देर से आएगी।
तो इंटरनेट ही हर जगह नहीं है, तो भैया उड़ाओगे कैसे? चलिए आपके पास इंटरनेट भी आ गया, आपके पास स्किल भी आ गया, आपके पास पैसा भी आ गया, अब बताइए क्या दिक्कत और क्या हो सकता है कुछ चैलेंज ड्रोन को उड़ाने में? मानसी, ड्रोन दीदी बताइए। So, और talent. और क्या है, सही बात है, और क्या हो सकता है? आप बोलिए औषधि जी। मतलब कमाल हो गया ना कि It's ड्रोन used आपको, during night, ड्रोन, है रात क्या, रात में? compare हाँ हाँ जी जी जी, compare कंपेयर टू डे, रात को हाँ रात रात को को ड्रोन नहीं उड़ उड़ने में पाएगा, उसकी इफेक्टिवनेस रात को है। नहीं, चलो हम दिन में ही उड़ा लेंगे, चलिए रात को नहीं उड़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। रात को हम अंधेरे में नहीं उड़ाएंगे, उस ड्रोन पर हम एक बल्ब लगा देंगे, रिचार्जेबल एक बैटरी जैसा, वो उड़ा के कर लेगा, चलिए मान लिया। क्योंकि और कोई क्या चैलेंज हो सकता है? और आशीष जी आप बताएंगे, या करुणा जी, बुद्धिमान हो बहुत। सर ड्रोन के लिए लाइसेंस लेने में चैलेंजेस हो सकते हैं। बहुत सही बात है, लाइसेंस लेने में कोई चैलेंज नहीं है, लाइसेंस की बात नहीं हो रही है। आप खुद क्यों नहीं सोच रहे हैं कि फार्मर, जो ये सारी बात हमने की, एग्रीकल्चर की बात की, आपने बेसिक बात नहीं समझी। वेदर डिपेंडेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। फेवरेबल वेदर कंडीशंस होंगी कि नहीं होंगी? रेन आ जाएगी, विंडी वेदर होगा, तो कैसे काम चलेगा? कैसे उड़ाओगे आप ड्रोन? तो वो आप काउंट ही नहीं कर रहे हो। रत्नागिरी है, वहां पर विंड डिफरेंट होगी, हिली एरिया है, वहां पे विंड डिफरेंट होगा, कहीं पे बारिश आने का, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बढ़ती जा रही है। अब आपने फसल लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं हुआ, तो वो भी एक चैलेंज है ड्रोन के लिए। अब औशिक जी कहेंगे ड्रोन गीला हो गया, ड्रोन गीला हो गया तो ड्रोन भीग गया। तो भाई ये सब में नहीं जाना है, बड़ा बड़ा ब्रॉड आइडिया रखिए, एंड यू टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। रेगुलेटरी बैकिंग तो है ही, लिबरल इंसेंटिव भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और करुणा जी को देख लीजिए, हमने ड्रोन बेच दिया, ड्रोन दीदी आ गई, मोदी जी ने ड्रोन कर दिया, लेकिन ये लाइसेंस में अटकी हुई है। लाइसेंस आपको भी मिल जाएगा, लाइसेंस कोई नहीं रोक रहा है। तो थिंक प्रैक्टिकल, डू नॉट थिंक लाइक अ टिपिकल रिजिड ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट, गो फॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। औशिक जी, अगर मैं बात करूं सोशल स्टार्टअप्स की, सोशल स्टार्टअप अभी तक हमने चर्चा की स्टार्टअप्स की रूरल एरिया में, तो सोशल स्टार्टअप में एक एरिया बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी गांव की किस्मत बदल देगा, या किसी जगह की किस्मत, कोई एक एक एरिया बताइए जो आप लेंगे सोशल स्टार्टअप। से एजुकेशन से वन एरिया। कैसे करेंगे एप्लीकेशन में, बताइए क्या करेंगे आप और कैसे करेंगे? So social startup schools infrastructure it is required, sir. For example, Rajkot system where bus is there for each villages. So ओके, this kind of a थैंक यू। मानसी आप बताइए, आप क्या करेंगे I would सोशल choose women स्टार्टअप? empowerment, sir. ये भी बड़ा ब्रॉड, इतना ब्रॉड एरिया है ये, वही है जैसे कि भाई ये बहुत ब्रॉड, आप स्पेसिफिक बात कीजिए। और रूरल सोशल स्टार्टअप जो कि लाइफ बदलने की बात करें, स्पेसिफिक बात करिए। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, करुणा आप बताइए। अरे आप सिंपल इफेक्टिव एग्जांपल देने की कोशिश किया कीजिए, फैला मत कीजिए। जैसे आप कह सकते हो सोलर, सोलर एनर्जी, सोलर ड्रायर्स हैं, सोलर ड्रायर से आप अपनी फार्म प्रोड्यूस को सुखा सकते हैं, बस बात खत्म। सोशल है, उससे बार्गेनिंग पावर किसान की बढ़ जाती है, लाइवलीहुड बढ़ जाता है उसका। सोलर ड्रायर जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्पेशली बहुत फेमस हुए हैं, वहां पे प्रोड्यूस को सुखाने में मदद मिली है उसको। जैसे अब डिलीवरी है, या फिर फर्टिलाइजर्स हैं, एमएसपी हैं, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन की वैल्यू चेन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो की वैल्यू चेन में क्या आएगा औशिक? ऐसी टेक्नोलॉजीज का नाम बताइए जो कि फूड प्रोसेसिंग को की वैल्यू चेन एडिशन करती हैं विलेजेस के अंदर। तो सोशल स्टार्टअप हम उसमें शुरू कर सकते हैं, बताइएगा क्या करेंगे आप? अरे अभी तो मैंने बताया ना, अभी आप सुखा रहे हो तो ड्रायर हो गया, हाँ सर। सुखाने के अलावा क्या क्या हो सकता है? सर पैकेजिंग हो सकता है, एक वन वन हाँ थिंग, पैकेजिंग होगा, कोल्ड पैकेजिंग तो बाद स्टोरेज, में होगी। कोल्ड स्टोरेज। बिल्कुल सही, बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज, सही बात। कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, ऑयल एक्सपेलिंग मशीन हो सकती है, उसके बाद जो है ड्राइंग तो हमने बात कर ही ली,
उनसे शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। ये है सोशल स्टार्टअप पर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज। yes, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हो गया इसके अंदर। बस बायोमास पाउडर्ड जो है कोल्ड स्टोरेज हो गया। जैसे बायोमास होगा तो बिजली का खर्चा भी कम आएगा। अब स्टार्टअप तो हो जाए लेकिन बिजली कहाँ से आएगी। ऐसे ही आपने हैंडीक्राफ्ट की बात की थी, तो उसके अंदर आ जाएगा आपका टेक्सटाइल और हैंडलूम में आ जाएंगी सिल्क, सोलर सिल्क रीलिंग मशीन्स हैं। ऐसे ही आप हेल्थ केयर में चले जाइए, वैक्सीनेशन रखने का एरिया हो जाएगा, टेली मेडिसिन हो जाएगा, डायग्नोस्टिक और वैक्सीनेशन इक्विपमेंट हो जाएंगे। तो दीज ऑल एरियाज वी कैन टॉक अबाउट। जैसे आप जो है जो आप पापड़ और अचार की बात कर रहे थे, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। yes. लेकिन मानसी, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं है रूरल इंडिया के पास। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं है। बड़े बड़े जो ये आईटीसी और अमेजन के प्लेटफॉर्म्स और ये सब कुछ ही है, तो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए आप क्या करोगे? So go-to-market strategy, we can talk about the GEM portal, जैसे digital portals, marketplaces जो हैं. और बोलिए, और बोलिए। So supply chain integration. वेरी गुड पॉइंट। और तो आई थिंक आपको बोलना चाहिए कि गो टू मार्केट के लिए मैं वुमेन को पीएम मुद्रा योजना से जोड़ूंगी, उनको पैसा दिलवाया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया और जो पीएम मुद्रा योजना है उससे जोड़ के मैं उनको एक्सपोजर बढ़वाऊंगी। मैं उनको न्यू न्यू एरियाज में, जैसे अब महाराष्ट्र है तो रूरल इंडिया से छोटे शहर में, छोटे शहर से बड़े में वेब पेज बनवाऊंगी। उनका वो बना देंगे, वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो एक आइडिया स्टेज होता है, एक वैलिडेशन स्टेज होता है, एक ट्रैक्शन स्टेज होता है जैसे हमारा भी है। उसके बाद होता है स्केलिंग स्टेज। तो फीमेल फाउंडर्स को प्रमोट किया जाएगा, ब्रांडिंग बनाने में मदद की जाएगी। तो फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल ओन्ड एमएसएमई। औशिक, ऐसे कौन से चैलेंज फेस करती हैं जो बाकी मेल फेस नहीं करते, बताइए। So they faces several challenges, for example, of finance and also अरे mentorship सही, challenges जो वो तो है, फेस करते हैं। बिल्कुल सही बोल। तो आप बोलिए मानसी, आप कुछ बोलेंगे इसमें? दिव्या, So करुणा। female challenges of first तो ये तो family support, lack of बिल्कुल family. सही है। फैमिली सपोर्ट भी नहीं, फैमिली के सारे स्टार्टअप, मतलब वुमेन के बहुत सारे स्टार्टअप घर से ही शुरू होते हैं। हम्म. होम, वो चैलेंज है। इनफॉर्मल होते हैं नेचर में, जी. वो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। दिव्या, आपको कोई पॉइंट ऐड करना है? सर उनके वर्क को केयर इकोनॉमी के अंदर काउंट किया जाता है उस तरह शेयर से। इकोनॉमी में काउंट कर लिया, चलो। एक्सेस टू मोबाइल डिवाइसेस होना चाहिए। सबसिस्टेंस ओरिएंटेड रहते हैं वो, सबसिस्टेंस ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते हैं। इसीलिए महिला उद्यमी योजना आई, या मुद्रा योजना आई, या स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया भी इसीलिए आया कि वो सबसिस्टेंस से स्केल की तरफ बढ़ाया जा सके। और दूसरा, डिसएडवांटेज वुमन के लिए बात करने की बात की गई। जैसे महिला कोयर योजना, कोयर जो होता है, कोकोनट का जो कोयर होता है, उनको स्टाइपेंड देने की बात भी करते हैं कि स्टाइपेंड भी दे दो और उनको उनकी ग्रीन बिजनेस स्कीम की तरह आगे बढ़ाओ महिलाओं के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना आपको कि कि नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका आपने कभी चर्चा भी नहीं कही होगी, हम जनरल बात करके छोड़ देते हैं, वो भी इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में फाइनेंशियल असिस्टेंस देने को तैयार है। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, एक तो फीमेल, ऊपर से शेड्यूल कास्ट, तो आगे बढ़ाना है उसको। वेंचर फंडिंग भी बढ़ रही है, एज भी बढ़ रहा है, इनकरेज किया जा रहा है। तो पढ़ लिख कर शहर गांव की जो लड़कियां हैं वो स्टार्टअप्स में आगे जा सकती हैं। सिर्फ बोलने से थोड़ी ना होगा, उसके लिए हमें मदद करनी होगी, हमें उसके लिए रास्ता बनाना होगा। क्रेडिट गारंटी भी है, क्रेडिट गारंटी फंड है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। तो औशिक, एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक स्कीम है, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। आई रिपीट, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। तो वो क्या करता है बताइए? so it creates an environment so that they can बिल्कुल flourish with the help of incentive as well as in formation of incubator and also वेरी गुड। grievances with regarding to the हम्म, हम्म, mechanism, sir. बिल्कुल सही। So, वंडरफुल। मानसी, यू वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर? No, sir. करुणा, No, sir. दिव्या,
सो आज के डिस्कशन से औशिक, how much rating do you give to yourself and how you summarize? Be quick. So 6.5, and I have to focus much more on big aspect, big keyword that is mentioned rather than formation of keyword impromptu basis. This would be it. Karuna, how much score would you give to yourself and what areas would you like to focus? Be quick, please. Divya, सर 5 5? और सर मजाक है क्या? सर लड्डू सर बट रहे हैं? हाँ बताइए, जल्दी बोलिए। जी सर, जो जैसे एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ा किया, उनके अंदर और किस तरह से देख सकते हैं उन चीजों के 10 में ऊपर से आपको 2 नंबर फोकस। दिए जाएंगे। 10 में से 2 जी है। इस दोनों जी सर। सेशंस को 4 बार और सुनिए और अगले सेशन में और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। जी सर। करुणा, आप बताइए। Okay, Mansi, you please speak up. How would you like to rate and what areas would you focus? So I would rate 4, and I will focus more upon simple ideas, going once through the entire doc, and even thinking simple, and again, as Kaushik said, focus more upon the key phrases. So more practice will help in terms of retaining And those words. anything you all would like to add where we must focus more? No, so Thank you very much. So wishing all of you all the best, and we'll continue with relentlessly pursuing the key aspect of getting success under all circumstances. Wishing all of you all the best.